Nationalist Congress Party spokesperson Nawab Malik on Saturday made yet another sensational claim. He said that Narcotics Control Bureau officer Samir Wankhede was using friends as witnesses during the investigation of the Mumbai cruise ship drug case. Can a friend of an NCB official be allowed to be a punch that is witness? He said in a tweet. Is it legally allowed? He asked. On October 3rd, the NCB raided a party on a cruise ship during which 8 people, including actor Shah Rukh Khan's son Aryan Khan, were detained for possession and consumption of drugs. Malik had alleged that the NCB had given vague statement about the raid and even released a relative of Bharatiya Janata Party leader within hours of detention. On Saturday, on Twitter, Nawab Malik shared Panchnama documents of the drug raid case in which Wankhede's friend Fletcher Patel had been named as a witness. A Panchnama is a document in which an officer records evidence collected from the location of a possible crime. To prove that Fletcher and Wankhede are friends, he shared their pictures from ceremony during Kargil Shahid Divas. Malik also shared an Instagram picture of Fletcher with a woman. Fletcher had called the woman Lady Dawn in the picture's caption. The person seen in this picture is Fletcher Patel and his picture is with Jasmine Wankhede, sister of NCB officer Samir Wankhede, Nawab Malik said. Last week, Nawab Malik had alleged that a BJP leader Manish Bhanushali and a private detective KP Gosavi were part of Central Agency's raid. He had questioned whether the Narcotics Control Bureau had the authority to allow private citizens to take part in raids or to take their help for such operations. The NCP spokesperson had also released 2 videos showing the purported involvement of the 2 men in the raid. The spokesperson also alleged that the central agency has not seized any drugs from the cruise ship. Photographs of so-called seized items are taken at the NCB's office only and sent out as media sources, Nawab Malik has alleged. जिस तरह से 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये बताया कि जो क्रूज पे रेड की कहानी गढ़ी गई ये फर्जी थी। इस रेड के दौरान 2 व्यक्तियों के हमने तस्वीरें जारी की, जो एक सेल्फी वायरल हुई थी, वीडियो वायरल जो हमने जारी की। उसमें एक व्यक्ति जो फरार मुजरिम है केपी गोसावी, वो आर्यन खान को घसीट के ले जाते हुए हमने वीडियो जारी किया था। हमने मनीष भानुशाली का भी वीडियो जारी किया था, जो मर्चेंट नाम के तथाकथित आरोपी को हैंडल कर रहे थे। उसके बाद एक वीडियो हमने जारी किया था कि ये किस तरह से धड़ल्ले से एनसीबी के कार्यालय में आ रहे जा रहे हैं। उसके बाद एक सीनियर अफसर ज्ञानेश्वर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ हमारे सवालों के जवाब न देते हुए अपनी बातें रखी थी। पहले तो मेरे बारे में कहा था कि वो प्रेजुडिस है, उनके कुछ कारण हो सकते हैं, दामाद की तरफ इशारा था। उसके बारे में भी कोर्ट के सारी जानकारी मैंने आपके सामने 14 तारीख के दिन रखी है। इसलिए रखी कि लोगों ने दामाद के सवाल खड़े किए थे, और उसी दिन ज्ञानेश्वर सिंह जी ने ये कहा था कि ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट पंच हैं। 2 तारीख से पहले इन लोगों को हम नहीं जानते, हम प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद 3 लोगों को छोड़ने की हमने बात की, वीडियो रिलीज किए, पॉलिटिकल कनेक्शन हमने बताया। उन्होंने कहा 3 नहीं 6 छोड़े, कौन छोड़े आज तक बता नहीं पाए। सवाल इंडिपेंडेंट पंचों को लेके ही हम आज खड़ा कर रहे हैं। फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति कौन है, इसका जवाब समीर वानखेड़े जी को देना होगा। ये फ्लेचर पटेल, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक तस्वीर डाली है जिसमें माय सिस्टर लेडी डॉन के नाम से एक पोस्ट की है, जिसमें वो महिला कौन है इसका जवाब वानखेड़े जी दें। हम आपको बताते हैं कि कोई भी सीआरपीसी हो, क्रिमिनल केसेस हो, देश में एक पंचनामा किया जाता है कि अगर कोई सीजर है तो क्या पकड़ा गया,
उसे सील किया जाता है, उस पर भी बहुत सारे सवाल हमने खड़े किए थे। और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसी जगह पे कोई मिल जाए जिसको वहां पे गवाह पंच बना के पंचनामा किया जाए। लेकिन ये फ्लेचर पटेल साहब जो वानखेड़े साहब के करीबी नजर आते हैं, उनका महिमा मंडल करने में व्यस्त नजर आते हैं, वे एक महिला के साथ अपने फेसबुक पे लेडी डाउन करके फोटो डालते हैं। आपको बता दें कि एक केस नंबर है CR नंबर 38/20, जिसमें 25/11/2020 में कार्रवाई की गई, दबिश दी गई या छापा मारा गया। उसमें फ्लेचर पटेल ये पंच गवाह करके उस केस में है। उसके बाद दूसरा एक केस है CR नंबर 16/20, जो 9/12/2020 को छापेमारी हुई, उसमें भी वो पंच है, विटनेस है। तीसरा एक मामला है CR नंबर 2/21, 2 जनवरी 21 के दिन छापेमारी की गई, उसमें भी वो विटनेस और पंच है। सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी के पारिवारिक मित्र का पंच होना ये कितने हद तक सही है?